हाय बच्चों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लास 11-12 के अंदर। तो इसके अंदर जब हम लॉगरिथम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि लॉगरिथम क्या है। तो लॉगरिथम इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग द लार्ज कैलकुलेशन। Suppose if the multiplication are given of many numbers which is not easy to solve by using the simple calculation, then we can use logarithm and its properties to solve such type of problems. So that is the main motive of studying logarithm, and it was given by Scottish mathematician Napier and Brits. Both mathematicians has given this theory of logarithm, which is used for representing any numbers. That is, either a number is negative number or a positive number, that can be represented in the form of logarithm. Just suppose you can write 8 in a very different way. Just I can write 8 is equal to the square root of 64. Similarly, you can write 8 as equal to 2 to the power 3. So logarithm is nothing but just a way of representing any number. So we will discuss about its definition and the properties of logarithm in a wider way. Okay? So आज की क्लास में हम लॉग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं. So first we will discuss about the definition of the logarithm. So start with that. So that is definition. So every positive number b, every positive number b can be written as b is equal to a to the power x. b is equal to a to the power x, where there are some conditions, that is a must be greater than 0 and a should not equal to 1, because if a is equal to 1, then b cannot be all real numbers. Suppose if I put a is equal to 1 here, so 1 to the power x is only 1. If you take any values of x, that cannot be any other number. 1 to the power 2, 1 to the power 3, all are equal to 1. So you cannot represent every positive number. So this restriction is taken. And similarly, a greater than 0 is taken as a restriction, because if you take a as a negative number, suppose if you take minus 2 whole to the power 2, then there is no problem. Minus 2 whole square is equal to 4. But suppose if I take x is equal to 1 by 2, okay? So minus 2 to the power 1 by 2, that is a square root of minus 2, is not a real number. That becomes the problem. So this two restriction has been taken here. Okay? अब जैसे कि आप देखिए एग्जांपल से बताता हूं. जैसे मान लीजिए 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर. Similarly 8 can be written as 2 to the power 3. 27 can be written as 3 to the power 3. So here b can be represented as a to the power x. b is here 4, a is 2 and x is also 2 in this case. But here b is equal to 8, a equal to 2 and x is 3. So every positive number can be represented in such type of form. We know it already, where a is called base and x is called exponent, or you can say that power of a, or you can also say it as index. Okay, we can say it as index. Just like in this case, the base is 2 and the index is 3. So we can represent 8 as equal to 2 to the power 3. Similarly, you can represent 1 by 8 as equal to 2 to the power minus 3.
2 to the power minus 3 means 1 upon 2 to the power 3, and that is equal to 1 by 8. So each positive number b, where b is greater than 0, that is positive number, can be represented in this form. Okay. So similarly, if this can be written as b equal to a to the power x, then we can represent it in logarithmic form as log b base a is equal to x. log b इक्वल टू a टू दी पावर x यदि आप लिख सकते हो तो उसी एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से भी लिखेंगे, log b base a इक्वल टू x, where the condition is a greater than 0, a is not equal to 1, and b is a positive real number, b greater than 0. That become the mathematical condition for logarithm to be defined. Log of a positive number is only defined. That means b क्या होना चाहिए यहाँ, greater than 0 number होना चाहिए. So that means log of 0 with any base is not defined. There is a reason that is not defined. We will discuss about it. But फिलहाल के लिए आप इसको याद रखिए, log 0 undefined है. Log of negative number is also undefined. Not defined. Okay. This must be remembered. That means if I say that log of minus 4 base 2 is equal to what? So you can say that is not any number. Okay. Log of minus 4 base 2 is not a number. And why it is? Because if you take it as x, let it as x. So you can say that 2 to the power x equal to minus of 4. Because if log b base a equal to x, then b is equal to a to the power x. Similarly, if I say that log of minus 4 base 2 equal to x, that simply implies that 2 to the power x equal to minus 4, and which is not possible. Think about it. Why it is not possible? Because if you take x as any real number, 2 to the power x can never be negative. 2 to the power x can only be a greater than 0 number. Okay. So that is the reason that log of negative number is not defined. Log of 0 is not defined because any number to the power x can never be. That means you can say that a to the power x cannot equal to 0. If I say that it is equal to x, so a to the power x must be 0, but we know that any number whole to the power x can never be 0. Okay, 2 to the power x is not 0. Or 3 to the power x is not 0 for any x. That is the reason. So the simple definition we must remember, that is, if any positive number b can be written as a to the power x, then if b is equal to a to the power x, then log b base a is equal to x, where there are some restriction on a and b. So you must remember this condition, and similarly you can say that this condition is also true. So see this in this example. इस example में देखते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3. 8 is equal to 2 to the power 3. So we can easily write it as log 8 base 2 equal to 3. Okay, if 8 is equal to 2 to the power 3, then we take 8 as number of log and 2 is in the base, so it must be log 8 base 2 एक नंबर है जो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, याद रखना है. ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 16 बेस 2 कितना होगा, है ना. log 16 बेस 2 की वैल्यू निकालो. तो देखिए कैसे निकालते हैं. That means we have to find this. So we will let it as x. और एक रूल के थ्रू हम याद रखेंगे कि किस तरीके से हम log की वैल्यू निकालें, जिसको हम कहते हैं 7 रूल. यहाँ पे जाइए, बेस के अंदर 2 है ना बेस, उससे जाइए यहाँ x की तरफ एक लाइन खींचना है और ऐसे. तो इसको कहते हैं क्या, 7 रूल कहते हैं लॉगरिथम का.
तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यदि log 16 बेस टू x के बराबर होगा तो 2 टू द पावर x कितना होगा 16 लिखेंगे हम लोग, एंड दैट मीन्स 2 to the power x equal to 2 to the power 4 and that means x equal to 4। x की वैल्यू कितनी निकल गई 4। तो हमने किसको लेट किया था x log 16 बेस 2 को, तो log 16 बेस 2 को x लिखा था हमने, तो ये कितना के बराबर हो गया 4 के बराबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस क्लास के अंदर। सो जस्ट नोट डाउन दिस थ्योरी पार्ट, we will discuss now some problems and the properties of logarithm। कि log a बेस a जो है वो 1 के ही बराबर होता है। log a बेस a कितना होता है 1 के बराबर होता है, जहां पे a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब बेस में क्या है वो भी a है और नंबर भी a है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। मतलब जैसे मेरे से पूछा गया कि log 2 बेस 2 कितना होगा, तो मुझे बिल्कुल जल्दी में बता सकूं 1 होता है, ठीक है ना। इफ एनी नॉट ओनली फॉर 2 log 10 बेस 10 कितना होगा तो 1 होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ लेकिन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ क्या है 1 नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि log a बेस a 1 के बराबर होता है। और ये बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, यू कैन इजिली से दैट। मान लेते हैं कि log a बेस a x के बराबर है, ठीक है ना, लेट कर लेते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया 7 रूल से मैं लिख सकता हूँ a टू दी पावर x a के बराबर होगा, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x 1 के बराबर होगा। और x किसको लेट करा था हमने log a बेस को a को, दैट मीन्स log a बेस a कितना होता है 1 होता है। ये सिंपल प्रूफ है। तो पहली जो प्रॉपर्टी हमने देखी वो ये है कि log a बेस a कितना होता है 1 के बराबर होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी वो ये है कि log a बेस 1 बाई log a बेस 1 बाई माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। log a बेस 1 बाई माइनस 1 के बराबर होता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए log 2 बेस हाफ है, तो ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा -1, ठीक है ना, -1 होगा ये। और ये भी बहुत आसान है समझना, क्यों होता है ये -1, क्योंकि यदि मैं 7 रूल लगाऊं तो ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए 7 रूल से। ये मैं लिख सकता हूँ क्या 1/2 का पावर -1 कितना होता है 1/2 का पावर -1 2 के बराबर होता है क्या, तो आप वेरीफाई करिए। इसको मैं 2 का पावर -1 का पावर -1 लिखूंगा और वो 2 है, तो ये 2 का पावर -1 अपन -1 तो 2 ही हुआ ना, तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, समझ गए बात। और वैसे भी यदि आप log a बेस 1 बाई a को x लिखोगे तो 7 रूल के हिसाब से 1 बाई a का पावर x 1 बाई a टू दी पावर x कितना होगा a के बराबर होगा। 7 रूल है ना, लगा रहे हैं तो, एंड दैट इज a टू दी पावर -x इज a एंड दैट मीन्स -x इज 1, दैट इज x इक्वल टू -1। और x कितना है हमारा, इसी को मैंने x लेट करा है, तो x की वैल्यू -1 निकली यहाँ से, दैट मीन्स log a बेस 1 बाई -1। log 1 बेस a, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, log 1 बेस a क्या होता है 0 के बराबर होता है। और वहीं a और ये तो है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। log 1 बेस a कितना होता है 0 के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स यदि कोई भी बेस हो जो कि 0 से बड़ा हो और नॉट इक्वल टू 1 हो, जैसे log 1 बेस 5 है या कोई भी बेस, यहाँ 10 ले लीजिए 1/2 ले लीजिए, बेस पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स log 1 बेस 5 हो या log 1 बेस एनी 0 से बड़ा नंबर या 1 के बराबर नहीं हो, तो हम इसमें इसकी वैल्यू 0 कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि 5 का पावर 0 1 होता है, ठीक है। 5 टू दी पावर 0 1 के बराबर है, सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे log 1 बेस a 0। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जिससे कि हमारा जो log का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 7 रूल, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। उसी 7 रूल के थ्रू मैं सॉल्व करूंगा। log की वैल्यू निकालनी है, क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 बेस 2। अभी ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, log 1 बेस a इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में डायरेक्टली 0 होगी, लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ ये 0। इसको सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं। लेट log 1 बेस 2
इसको मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है ना, लेट दिस एज इक्वल टू x। 7 रूल लगाते हैं, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 1। कैसे लिखना है 7 रूल, आपको समझ में आ गया होगा। 7 रूल में नीचे जाना है बेस के पास, वहां से इधर की तरफ आना है ऐसे। यहाँ पे 7 का एक पिक्चर बन रहा है, तो 2 का पावर x 1 के बराबर लिख देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 को मैं 2 का पावर 0 लिख सकता हूँ, और ये तभी बराबर होगा जब x भी 0 हो। 2 का पावर x 1 कब होगा, जब x 0 के बराबर हो। और x किसको लेट किया था हमने, log 1 बेस 2 को, तो log 1 बेस 2 कितना हो गया, 0 के बराबर है। इसका मतलब x क्या है, log 1 बेस 2 है, तो log 1 बेस 2 की वैल्यू 0 होती है। उसी तरीके से log 8 बेस 2 निकालना है मुझे, ठीक है ना, ये बी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। तो इसको मैं log 8 बेस 2 को x लेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 7 रूल फिर से लगाते हैं, तो 2 का पावर x 8 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x, हिट एंड ट्राई करनी है। यहाँ तो मैंने 7 रूल लगाया है, और इधर x इक्वल टू 3 हो गया, और x कितना था, हमने log 8 बेस 2 को x लिखा था, तो उसकी वैल्यू 3 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे जाते हैं, ये सी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दैट इज log 27 बेस 81। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, log 27 बेस 81 को x लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड x। सो दैट मीन्स 27 इक्वल टू 81 टू द पावर x। अब यहाँ है 27, उधर है 81, सेम बेस में लाना पड़ेगा, तभी आप x निकाल सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं ना, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर x। इंडेक्स का रूल पता है आपको, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4x, और यहां से हम लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 3। यहां से हमारे पास x आ गया कितना, 3/4, और x क्या था, हमने लेट किया था log 27 बेस 81, तो उसकी वैल्यू 3/4 है। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डी प्रॉब्लम, ठीक। तो डी वाला प्रॉब्लम में क्या है, log 9√3 बेस 1/3 है, इसको 9√3 बेस 1/3 को x लेट कर लेता हूं, ठीक है ना, लेट इट एज x, इसको x लेट कर लेते हैं। तो 7 रूल लगाते हैं, 1/3 टू द पावर x कितना हो जाएगा, 9√3। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 टू द पावर x, दैट मीन्स 3 टू द पावर -x भी लिख सकते हैं इसको। और इधर 3 के उसमें लिखे तो 3² इंटू 3 का पावर 1/2, 9 को मैं 3² और √3 को 3 का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, दैट इज 3 टू द पावर -x इक्वल टू 3 टू द पावर 2 प्लस 1/2, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ x इक्वल टू, यहां से आप समझिए 2 प्लस 1/2, यही मैं निकाल के लिख देता हूं, तो 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2। और यहां से आप कंपेयर कर रहे होंगे तो -x 5/2 के बराबर है, -x क्या है, 5/2 के बराबर, और x कितना हो रहा है, -5/2, और x किसको लेट किया था हमने, इसको log ऑफ 9√3 बेस 1/3 को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, log 9√3 बेस 1/3 कितना है, -5/2 के ही बराबर आ गया। तो ये चारों के चारों प्रॉब्लम जो है वो इजिली 7 रूल टू द पावर log x बेस a जो है वो x के ही बराबर होता है। मतलब यहाँ ऑब्वियसली a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब की कंडीशन में क्या होता है, a टू द पावर log x बेस a x के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ इसका 3 टू द पावर log 27 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 27 के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात, कितना होगा ये, मतलब एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसी के जैसा लिख दिया है मैंने, 3 टू द पावर log 27 बेस 3 इक्वल टू 27 होगा। तो आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो इसको यदि मैं वेरीफाई करूं, एक बार देखूं, तो यहां से आप इसको देखिए, इसको मैं 3 और log 27 बेस 3 कितना होता है, यदि मैं इसको x लिख लूं तो 3 का पावर x, 7 रूल लगाते हैं, 3 टू द पावर x इज 27 एंड दैट मींस 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर 3, तो x इक्वल टू 3 आता है। तो मतलब log 27 बेस 3 तो 3 होता है ना, तो 3 टू द पावर 3 तो 27 के ही बराबर है। तो सही बात है, यहाँ पे इसकी वैल्यू log 27 बेस 3 3 होता है। तो
ये लिखा जा सकता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि log x बेस a जो है उसको मैं y लिख लेता हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। log x बेस a को क्या लिख रहा हूँ, y लिख रहा हूँ। तो मैं ये वाला प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आया। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं 7 रूल लगाऊं, इसका मतलब a का पावर y को मैं x लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैंने लेट कर लिया है कि ये log x बेस से कितना है, y है। तो यहाँ पे a का पावर y कितना है, x है। y कितना लेट करा है हमने, log x बेस से। तो यहाँ पे मैंने y की जगह पे यदि मैं log x बेस से लिख दूं तो x के बराबर आ गया। तो y को यदि हम log x बेस से लिखेंगे तो a का पावर y x होगा, और y की जगह पे log x बेस से लिख देंगे तो ये प्रूफ हो गया। तो सिंपल प्रूफ है, दैट इज प्रूफ। ये प्रॉपर्टी हो गई लॉग की। तो ये कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन, बेस में क्या है, 3 है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि एक नंबर किसके बराबर है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन, इसको यदि मैं y लेट कर लूँ, है ना, वो इसको y लेट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3y, क्योंकि इस पूरे को यदि मैंने y लेट किया है तो यहाँ से लेके पूरा जो है वो फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है, यही पूरा नंबर। तो इसको y लिख लेते हैं और इसको y यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यदि हम स्क्वायर करें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 3y इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आने वाला है y इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड दैट इज y इक्वल टू 0 और 3। y की दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 एंड 3। क्या ये दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं y की? तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि log के अंदर जो भी नंबर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है ना, 0 भी नहीं हो सकता। log ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। log के अंदर 0 से बड़ा नंबर ही पुट कर देते हैं, तो 0 वाला केस तो हम ले नहीं सकते। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब y कितना आ गया हमारे पास, 3। अब इसका मतलब इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये प्रॉब्लम कैसा बन गया, सिंपल बन गया, log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 1 होता है, ठीक है ना, याद रखिए। log a बेस a अभी बताया था, फॉर्मूला है, log a बेस से कितने होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। तो ये इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, log ऑफ 2 प्लस रूट 5 और बेस में है रूट 5 माइनस 2। तो ये कैसे निकालेंगे। तो एक बात है इन दोनों नंबर्स के अंदर जो खास बात है वो ये है कि 2 प्लस रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस 2 यदि हम करें, और इसको मैं लिख लेता हूँ रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2। 2 प्लस रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट 5 प्लस 2, एंड दिस इज रूट 5 माइनस 2, एंड दैट इज इक्वल टू रूट 5 होल स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 4। 5 माइनस 4 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 प्लस रूट 5 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस 2। क्या लिख सकता हूँ, या सिंपली ऐसा समझिए कि रूट 5 माइनस 2 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5 लिख सकते हैं। रूट 5 माइनस 2 की जगह में लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5। तो ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो ऐसा हो गया, log 2 प्लस रूट 5 और बेस में कितना हो गया, 1 प्लस 2 रूट 5, है ना, रूट 5 माइनस 2। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। क्यों, क्योंकि log a बेस 1 बाई ए जो है वो -1 के बराबर होता है। ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। आई थिंक ये दिख रहा होगा, 2 प्लस log ऑफ, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 प्लस रूट 5 और बेस में लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5, इसलिए इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू -1 होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये देखिए 8 टू द पावर log x बेस 8 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो x निकालना है, ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। अभी जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था 8 टू द पावर log x बेस से कितना होता है, x के ही बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, प्रूव भी किया था हमने। तो इसलिए 8 log x बेस 8 को मैं x लिख सकता हूँ सिंपली, प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। x कितना आ रहा है, -3 के बराबर आ रहा है। अब मैं दोबारा से ये पूरा का पूरा इक्वेशन देखूंगा तो यहाँ पे 8 टू द पावर log ऑफ -3 बेस 8, यहाँ पे x की जगह यदि मैं -3 पुट करूँ तो log क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। log के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते। तो इसका मतलब हमें पता चला कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन तभी देगा जब x की वैल्यू -3 होगी, बट log ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो इस पूरा इक्वेशन का जो है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो कि हम इसके अंदर पुट कर सकते हो, क्योंकि -3 पुट करते तभी ये सॉल्यूशन देता, जबकि -3 log के अंदर पुट नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो दैट इज आंसर इज नो सॉल्यूशन। सिमिलरली ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। log ऑफ a स्क्वायर -1 बेस 3 इक्वल टू -1 है, तो फाइंड करना है a कितना होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 7 रूल लगाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1 इक्वल टू a स्क्वायर -1, है ना। दैट इज 1/3 इक्वल टू a स्क्वायर -1। 1/3 कितना हो गया, a स्क्वायर -1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू 4/3। तो a स्क्वायर 4/3 आ रहा है, a स्क्वायर कितना आ रहा है, 4/3। तो a की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2/√3। ये कितना आ रहा है, प्लस माइनस 2/√3, प्लस 2/√3 भी आ रहा है और माइनस 2/√3 भी आ रहा है। तो यदि मैं देखूंगा कि a स्क्वायर -1 के जो वैल्यू है वो तो 1/3 आ रही है जो कि पॉजिटिव ही है। या तो मैं a का वैल्यू 2/√3 रखूं या -2/√3 रखूं, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब a का आंसर कितना है, प्लस या तो -2/√3 है। तो ये लॉग के अंदर ये चारों प्रॉब्लम मैंने अभी सॉल्व किए। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, जिसको हम लॉज ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं या सिंपली प्रॉपर्टीज भी कहते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, और सिंपली यू कैन से दैट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो कंडीशन है इफ n इज पॉजिटिव and a is positive, a is not equal to 1, then the first property is log m into n base a is equal to log m base a plus log n base a। ये पहली प्रॉपर्टी है log की, ठीक है ना। log की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, log m into n base a is equal to log m base a plus log n base a, जहाँ पे m भी पॉजिटिव होना चाहिए, n भी पॉजिटिव, और a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन ऊपर लिखी हुई है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसका सिंपल मतलब है, जैसे मान लीजिए log 12 बेस 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 4 into 3, है ना। log 12 को मैं 4 into 3 लिख लूँ, और फिर इसको लिख सकता हूँ log 4 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3। सिंपल फॉर्मूला है, log m into n is equal to log m base a plus log n base a। ये पहली प्रॉपर्टी है, बट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लीजिए log m into n into p हो, 3 नंबर हो यहाँ m n p और तीनों पॉजिटिव हैं, बेस में a है, तो इसको सिमिलरली ही log m base a plus log n base a प्लस log p base a लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये सिर्फ 3 या 2 के लिए नहीं, ये कितने भी नंबर यदि मल्टीप्लिकेशन में है फाइनाइट नंबर, तो उसके लिए ये वैलिड है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को नेक्स्ट क्लास में मैं प्रूफ करूंगा। आज की क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज है वो बता देता हूँ, ठीक। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, log m/n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। डिवीजन में रहेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं, इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। इनका का नाम दे दिया गया है, बट आपको याद रखना है सिंपल कि ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए log 5/2
बेस 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3। और सिंपली यदि ये सभी के लिए वैलिड, जैसे मान लीजिए log 2 इंटू 3/5 है और बेस में 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ पहले बेस 2 माइनस log 5 बेस 2, और फिर ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी थी इसके थ्रू लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2। तो इस तरीके से हम log में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो डिस्कस कर लेते हैं। log m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू m log m बेस a। m का पावर में n रहेगा ना, तो ये n जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर इस साइड आ जाएगा, है ना। और जैसे मान लीजिए log 3 टू द पावर 4 बेस 3 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये सिंपली 4 log 3 बेस 3 और ये 4 इंटू log 3 बेस 3 को जैसे मैं 1 लिख सकता हूँ तो इसका आंसर 4 हो गया। तो इस तरीके से जो है वो सिंप्लीफिकेशन के काम में आता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। log m टू द पावर m कितना होता है, n log m होता है, ठीक है। बेस में तो कोई भी नंबर जो है वो रहेगा, उसके हिसाब से वो बेस नहीं रहेगा उसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है log ऑफ m और बेस में n है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस तरीके से है ना, log m बेस n है, तो इसको जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं log m बेस a अपॉन log n बेस a, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, log m बेस n को हम क्या लिख सकते हैं, log m बेस a अपॉन log n बेस a। मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, log m बेस में एक नया, पहले तो n था लेकिन आप एक नया नंबर a लिख लिया, यहाँ पे भी a लिख लिया। इसको बेस चेंज थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बेस चेंज थ्योरम ऑफ लॉगरिथम। मतलब मान लीजिए log 5 बेस में है आपका 4, या log 25 मान लीजिए, कोई सा भी है, log 25 बेस 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 25 बेस 5 डिवाइडेड बाय log 4 बेस 5, ऐसा लिख सकता हूँ। समझ गए बात। ये मतलब हमने एक नया बेस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करके उसको लिख सकते हैं, तो ये इसको बेस चेंज थ्योरम कहते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए log m बेस n इंटू log n बेस a है ना, सिंपली log m बेस n इंटू log n बेस a है, ठीक है। तो यहाँ पे n और n है, इसको हटा करके आप सिंपली log m बेस a भी लिख सकते हैं। मतलब ऊपर जो अभी लिखा था हमने उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप इसको इसके साथ, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसको बेस चेंज थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पे क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सारे फॉर्मूले, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लॉग की होती है। यही बेस चेंज थ्योरम पे एक और प्रॉपर्टीज जो कि आज की क्लास का लास्ट में बता रहा हूँ, दैट इज log x बेस a है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ log x बेस x अपॉन log a बेस x। देखिए यहाँ पे x था, अब मैंने बेस क्या किया, यहाँ x कर दिया, और यहाँ a इधर x, तो इसको मैं log x बेस x तो 1 होगा, दैट इज log a बेस x भी लिख सकता हूँ। मतलब समझिए log x बेस a को मैं 1 अपॉन log a बेस x भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए log 5 बेस 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log 2 बेस 5, सिंपल। और इसका मतलब ये भी हो गया कि ऐसा भी प्रॉपर्टी हो गया कि log x बेस a इंटू log a बेस x 1 के बराबर होता है। बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, a x x दोनों जैसे सेम सेम है तो 1 होगा। और इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, log 4 बेस 2 इंटू log 2 बेस 4, log 4 बेस 2 इंटू log 2 बेस 4 क्या है, 4 4 2 2 नंबर है ना, देखिए तो ये 1 होता है, तो प्रॉपर्टी हो गई। तो आज के क्लास में इतना ही।